Now you can carry on. Okay. Yeah. Good evening, everyone. It is indeed my great pleasure and privilege to welcome Mr. Mukesh Srivastav, an eminent, renowned, globally known photographer, for a talk, chat, and discussion session with our students of primarily development journalism. But along with that, the session is open to anybody and everybody who is interested in this area. तो अपने कॉलेज के सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स के बिहाफ पे मैं श्री मुकेश श्रीवास्तव का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमें उनके साथ ऐसे सेशंस करने का पहले भी 2-3 बार मौका मिला। He has been very, very gracious in giving his time, always at a very short notice, because always we do it sometime in November, around the festival season or after the festival season. इस बार भी ओरिजिनली ये हमारा चैट सेशन दिवाली से अगले वाले वीक में शेड्यूल था, बट ड्यू टू टू मेनी इवेंट्स इन द कॉलेज एंड डिपार्टमेंट वी कुड नॉट हैव इट, but he has been so kind that at 2 days notice he agreed. He put up the whole show for us because we have exams beginning coming Tuesday. Magar thank you to my students also, and thank you so much to sir for agreeing to interact with our students of development journalism, ताकि उनको उनके एनरिचिंग अनुभवों से बहुत कुछ सीखने को मिले। सो आज का सेशन जो हम फोकस कर रहे हैं वो हम फोटो जर्नलिज्म और ट्रैवल जर्नलिज्म पे कर रहे हैं, बिकॉज ट्रैवल जर्नलिज्म ओवर द पास्ट 3-4 years हैज बीन an अपकमिंग एरिया जहाँ पे लोग इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं एंड अच्छी अर्निंग्स भी कर सकते हैं। और सर के अपने बहुत सारे इस एरिया में बहुत रिच अनुभव है, और सर ने 2 किताबें भी ऑथर करी हैं ऑन फोटोग्राफी इश्यूज। ही इज वेरी वेरी गुड एट द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ फोटोग्राफी. So with this small introduction, a very humble introduction, I hand over to Mr. Srivastav to take over and enrich our students with his gracious presence. Thank you and welcome to all the participants, people who are from the photography background besides my students, people who are ex-students like Samaran, whom I contacted just today morning at a very short notice, and she mobilized some of her friends also. So special welcome to my ex-student and other friends from Northeast, along with the photographer friends of Mr. Srivastav and all my students and colleagues. Thank you, sir, and I hand over to you. Thank you, ma'am. So, girls, let me know who among you all who are interested for photojournalism. Seriously, just thumbs up. So your yes by thumbs up. Yes, 1. और कोई? तो जो इंटरेस्टेड नहीं है वो क्लास क्यों ज्वाइन किया? सिर्फ एग्जाम देने के लिए? ये करिकुलम का पार्ट है। तो एनीवे, आज के सेशन के बाद जिनको अभी तक फोटोग्राफर बनने का मानस नहीं हुआ है, उनको भी हम फोटोग्राफी की तरफ लेकर जाएंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। और गर्ल्स और ऑल पार्टिसिपेंट्स, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि wherever you want to ask any question, feel free to ask so that the session becomes interactive. Okay, so will you permit me to share my screen? Yes. Yes. Here my screen. Is it visible to you all? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो सभी स्टूडेंट्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, लेडी इरविन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, you are welcome. And I will just tell you about in brief about photojournalism and travel journalism. Both are very close to each other.
And basically, within both the types of photojournalism, the heart is street photography. Because in both photojournalism and travel journalism is nothing but street photography, but there is some difference between the street photography, again photojournalism, and travel journalism. Today, I will narrate very clearly what is the difference. सबसे पहले हम ये हम हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि ये पहला मौका मिला था कि किसी बाहर के राज्य में इंदौर प्रेस क्लब ने हमको 2018 में एज ए फैकल्टी बुलाया था टू गिव ए 4 आवर सेशन ऑन फोटो जर्नलिज्म। ये मेरा पहला। सो बिफोर भी 3 बार मौका मिला है, एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड। Okay, girls, let us talk some theory about the genre called photojournalism. We must know little bit, but I will give more stress. Madam, am I audible? Yes, yes, yes. I will give more stress on the visual, you can say, concept than a Yes. theoretical approach. Okay. Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज थ्योरेटिकल थ्योरी पढ़ाने के लिए तो मैडम लोग हैं ही आप लोगों के पास में, लेकिन हम लोग जो एक व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल, वो आप दिखाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे कि इसमें क्या चीज है। पहले हम जाने कि फोटो जर्नलिज्म क्या है। इट्स द कम्युनिकेशन ऑफ न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, न्यूज थ्रू फोटोग्राफ। दीज इमेजेस टेंड टू अपीयर इन प्रिंट media and magazines, as well as online media sites, or you can call it electronic media and micro blogging platforms. So basically, photojournalism is photojournalism indicates basically news for any media. Okay, then we will go ahead. And then characteristics of photojournalism. It's relevant. The main objective of photojournalism is to tell a story. Tell a story is very important. See, we have seen videos. We are doing making reels on Insta and here and there. So we are creating some story through a video. Means ki containing a few thousands of photographs, whereas the most important part in the photojournalism is telling a story through a single image. That is the real challenge for the photojournalism, which is definitely better than text or write-up that usually accompanies the photograph. Like एक इमेज से एक पूरी कहानी कहना बहुत बड़ी बात है, वही फोटो जर्नलिज्म है। दूसरा है फोटो जर्नलिज्म इज टाइमली, मीन्स की मोमेंट। फोटो जर्नलिज्म में डिसिसिव मोमेंट को दिखाना ही एक सही फोटो जर्नलिस्ट का काम है। फोटो जर्नलिज्म इज ऑब्जेक्टिव, मीन्स की यू मस्ट सेट योर ऑब्जेक्टिव वेरी क्लियर बिफोर गोइंग अहेड फॉर एनी काइंड ऑफ फोटो जर्नलिज्म असाइनमेंट। फोटो जर्नलिज्म इज नरेटिव, definitely is narrative, and the last but very important, aesthetically interesting. Aesthetically means कि basically composition of the frame. जो आगे जो भी हम लोग विजुअल वे में फोटोग्राफ को दिखाएंगे, वहां हम बताएंगे भी आपको कि कंपोजिशन का क्या इंपॉर्टेंस है। Then what are the types of photojournalism? Number 1, general news, portraits, spot news, feature news, sports action, and illustration. And very important, each requiring unique skills and approaches. तो गर्ल्स, ये यूनिक स्किल का मतलब आप क्या समझती हो? यूनिक स्किल
कि जो भी आप टूल यूज कर रहे हैं, चाहे आप एक DSLR कैमरा या मिररलेस कैमरा या मोबाइल कैमरा का यूज कर रहे हैं, तो उसको यूज करने का आप में पूरा स्किल होना चाहिए, पहला चीज ये। दूसरा पार्ट है कि एक तो हुआ स्किल विद द टूल्स यू आर यूजिंग। दूसरा है कि जो फोटो जर्नलिज्म क्या चीज है, ये आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। क्योंकि फोटो जर्नलिज्म इज नॉट ओनली ए स्ट्रीट फोटोग्राफी, it's not a simple portrait, it's not a simple landscape, it's not a simple wildlife, it is a different. So you must equip yourself in terms of the tools and the knowledge of photojournalism. And then approach is very important. आपका approach क्या है? जैसे कि फोटो जर्नलिज्म में जो पहला चीज इंपॉर्टेंट है अप्रोच में, कि जो आप आंख से देख रहे हैं वही आपको दिखाना है दूसरे को। जो रंग आपको दिखा अपनी आंख से, वही आपको अपने फोटो जर्नलिज्म के फोटोग्राफ में दिखाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी जाते हैं, फोटो जर्नलिस्ट को ये ध्यान देना चाहिए कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप जो वहां पे सब्जेक्ट है या लेडीज है या जेंट्स है, उसको डायरेक्शन मत दीजिए कि आप ऐसा पोज करो वैसा पोज करो। अगर आप डायरेक्शन देके फोटोग्राफ करेंगे तो दैट इज नॉट ए फोटो जर्नलिज्म, दैट इज कॉल्ड अरेंज्ड फोटोग्राफ। अब जो इम्पोर्टेंट है, जो सुधा मैडम ने भी इसके बारे में चर्चा किया था, कि इसका स्कोप क्या है, व्हाई यू वांट टू लर्न फोटो जर्नलिज्म इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अभी है कि सबसे बड़ा इसका स्कोप है न्यूज सेक्टर में। ओके, यूजुअली जो प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो काम करते हैं फोटो एज ए फोटो जर्नलिस्ट, उनको न्यूज फोटोग्राफर्स बोलते हैं। तो देर इज ए डिफरेंस बिटवीन न्यूज फोटोग्राफर्स एंड फोटो जर्नलिस्ट, वो भी हम बाद में बताएंगे आपको। Then utilize images to convey a narrative and communicate information in a news piece. As the mainstream media develops, photojournalists will be asked to record both still and moving photographs. Girls, कहीं भी कोई डाउट हो, प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क मी द क्वेश्चन। मस्ट बी वेरी क्लियर, क्योंकि ग्रेजुअली आपको हम उस मकाम पे लेके जा रहे हैं जहां से आप अगले दिन सुबह उठने के बाद में कहोगे कि हमें भी अब कैमरा चाहिए, हमको भी अब फोटो जर्नलिज्म करनी है। ओके, देन देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट 3 C's ऑफ फोटो जर्नलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल 3 वर्ड। कंटेंट, आप जो फोटोग्राफ ले रहे हैं उसका कंटेंट क्या होगा, ये आपके दिमाग में पहले से क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट, इसके पीछे आपका कंसेप्ट क्या है। ये जो आप फोटो जर्नलिज्म कर रहे हैं, कि आप पॉवर्टी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं या रिचनेस को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं या आर्ट एंड कल्चर को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द कंसेप्ट। And then last but very important, composition. Simple composition will pop up your whole frame, will enhance your story within the photograph. Girls, please switch on your video, because it looks to be very bad if I am just barking like a dog in front of a wall. Okay. So you must know who is the father of photojournalism. Henri Cartier of France earned the title of father of photojournalism thanks to his uncanny ability not
noteworthy events in what became known as his decisive moment. This Henry Carter is very famous for capturing decisive moment. You will see his work very soon. He is no more now, but he spent quite from 1908 to 2004. He was a French artist. He is also a painter. Apart from the photojournalist, he is also a painter and humanist photographer. Humanist means कि इनके फोटोग्राफ में जो ह्यूमन टच है, ह्यूमन टच मीन्स की सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स, वो इनके फोटोग्राफ में आपको देखने को मिलेगा. He considered as a master of candid photography, and photojournalism is basically a candid photography. And an early user of 35mm film, he pioneered the genre of street photography. I told you that street photography is the base for any photojournalism, and viewed photography as capturing a decisive moment. This is his the quality of he has captured mostly decisive moments through his camera. He was one of the founding members of Magnum Photos in 1947. It's a very, very important forum. In the 1970, he largely discontinued his photography work and opted for painting. And now he's busy. He was busy in the 20s in the painting art. And now you see the picture of Henry Carter. इस फ्रेम में एक तो कंपोजिशन देखिए, जो बच्चा दौड़ रहा है उसका जो मोशन है, मूवमेंट है, वो कैंडिड कैप्चर हुआ है. उसका प्लेसमेंट एज पर कंपोजिशन रूल 3 में है. देन दोनों तरफ ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशन है, आइदर कर्व्स है और रेक्टेंगल है. ओके, so he has captured a decisive moment in this frame. Next, you see wonderful vertical composition. The mother is going with child. This is another one. This is very interesting. Anybody can tell what is most important in this frame? Please raise your hand. Can anyone tell what is the most important element in this frame in terms of storytelling? The dog. Very good, very good. So happy to know that. Now you see, this is a frame having an intimate scene between the two friends. But the dog is the most important. Without dog, that frame is not a photo journalism. But the dog has created the connection between that intimate moment and his vision, and it's giving a story in the frame. This is called photojournalism. Then this is capturing decisive moments by Henry Carter. This one is also very, very strong composition, I can say. The girl on the white patch of the earth and the light and shadow. It's wonderful. Then विदेशी तो है ही, अपने देश की भी बात की जाए कि हमारे देश में फादर ऑफ इंडियन फोटो जर्नलिज्म कौन है नहीं थे, वो है पद्मश्री टी.एस. सत्यन. ही इज ए मैसूर बेस्ट, renowned as the father of Indian photojournalism, has captured both monumental events and everyday life in India, reflecting the essence of ordinary people. इनका पूरा नाम है
Tambrahali Subramanya Satyanarayana Iyer. He was born in 1923 and then he died in 2009. Popularly known as T.S. Satyan, was an Indian photojournalist. Satyan was born and educated in Mysore. He studied at the city's Banu Maiya School and gained his Bachelor's of Arts degree from Maharaja College, Mysore. In 1977, the Government of India conferred upon him the Padma Shri Award. I can tell you, students and friends, that only a few photographers has been conferred with Padma Shri, and he is one of them. Then see his human touch and the composition and the, you can say, very lively frame. There are 3 children. तीनों का अलग अलग पोजीशन है और तीनों का प्लेसमेंट इन्होंने रखा है एक डायगोनल कंपोजिशन. ओके, एंड इन कंपोजिशन में जो डायगोनल कंपोजिशन कई तरह के होते हैं. एक तो लेफ्ट बॉटम टू राइट टॉप, दूसरा राइट बॉटम टू लेफ्ट टॉप. द मोस्ट डायनेमिक कंपोजिशन इज फ्रॉम लेफ्ट बॉटम टू राइट टॉप, एंड दैट ही हैज followed in this frame. This is saving life. Wonderful photojournalism. Then this is almost like a street life, but it is a part of photojournalism. This is frame in frame. Wonderful. Another question. This is very good. Capturing the smile and happiness of mother and child. A thirsty man. This is voting by a very aged woman. This is a wonderful. Although this is a composition from right bottom to left top, but because of light and shadow and the you can say pattern of the jumping boy is very good. So that's why this is also good composition. And this is the ultimate. So friends, we have now seen and learned about the photojournalism. Now we'll start knowing and viewing the pictures on travel journalism. Why this is a different genre than photojournalism? Any picture you capture during traveling is a travel journalism. Travel journalism means कि your picture, your concept must indicate a geographical location of the frame. जैसे ताजमहल के पास कोई आपने खींचा, वो एक geographical location है, that is a travel journalism. आप कुतुब मीनार के एरिया में कुछ आपने पिक्चर खींचा, दैट इज ए ट्रैवल जर्नलिज्म. आप चांदनी चौक पे आपने कोई पिक्चर खींचा लाल किले के आसपास, तो दैट इज ए ट्रैवल जर्नलिज्म. It is a style of news reporting. Again, this is also a news reporting, but it is different than photojournalism. How you will know ahead. That uses travel log. Travel log is very popular nowadays, where a travel journalist takes you to wide variety of destinations and details everything related to that place. Girls, are you clear about travel log? आप में से कोई travel log लिखता है? Please raise your hand.
Please be interactive. Then only you will enjoy more. Okay. Travel journalism can be of audio-visual as well as written form. Means ki it can be in a visual form, a video format, or it can be a text format, adding the pictures within the text. How to become a travel journalist? सबसे important to earn a degree. While some employers may hire travel journalists without a degree, earning his academic credential can often help you find full-time jobs with the media outlets. Complete an internship, practice writing. This practice is very important for in any genre of photography. Search for jobs, pitch stories, build a portfolio. Portfolio is very important. You must build your portfolio so that others will see your portfolio and they will know about you. Likewise, I have made a portfolio. You have seen my intro video. Why I have made it? Because people should know about me and my work. Similarly, every travel journalist should make a wonderful portfolio and उसको वायरल कर दे आप लोग फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और एक्स जहां जहां भी है। क्योंकि जितना लोग आपका काम देखेंगे, आपके पोर्टफोलियो को देखेंगे, उतना आपका डिमांड बढ़ेगा, उतना जो आपका जॉब पोटेंशियल है वो बढ़ेगा। एम आई क्लियर गर्ल्स? आप लोग इतने चुपचाप क्यों हो? कुछ बोला करो बीच में, मजा नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। क्या बीच में बोला करो? लग रहा है कि हम क्या दीवार से बात कर रहे हैं। ओके सर। ओके प्लीज। ट्रैवल जर्नलिज्म का स्कोप क्या है? With the rise of digital media, travel journalists now have more platforms than ever to share their stories, including online magazines, travel blogs, podcasts, and social media. I can tell you very frankly, students of, I can say, mass communication or development journalism. Nowadays, the scope of photojournalists as a career is not much, but career as a travel journalist is very, very rewarding, very high. Likewise, nowadays you must be seeing there are a lot of YouTubers who creates stories on travel blogs. Okay, and they are earning a lot. Without getting a job, they are earning even few lakhs per month. It happens, but you have to work very hard. So this is very challenging and very rewarding and paying genre of photography, travel journalism. Again, I will repeat the same 3 C's. वो तीनों C यहाँ भी valid है. Content, concept and composition. अब आपको हमारे अपने खुद के खींचे हुए फोटोग्राफ्स के माध्यम से आपको हम ट्रैवल जर्नलिज्म के बारे में बताएंगे। पहला हमने कहा कि ट्रैवल जहां वर्ड आता है, इसका मतलब कि that frame must indicate the geographical place, कि वो किस जगह का है, कहाँ का है। ओके, एक ब्रिक किल पे हमने कुछ स्टोरी बनाया था, उसका एक फोटोग्राफ आपको दिखाएंगे। दिस इज द फोटोग्राफ। अब इसमें कंपोजिशन को देखें आप। देयर इज अ डायगोनल फॉर्मेशन, देन मूवमेंट ऑफ the kill workers, okay, and definitely very bright colors they are wearing. Then again I made a you can say travel blog for the paddy plantation.
पहले कहा कि तीन लोग की जाती है। और इस तरह से आपका जो जीवन है, इस तरह से मैं तुम्हारे लिए इस्तेमाल करूंगी। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। सर बहुत क्रैकिंग, वॉइस क्रैकिंग हो रहा है बहुत। We can't hear you at all. या तो वॉइस मिसिंग है या फिर क्रैक है, दोनों हो रहा है, कभी क्रैक हो रहा है कभी मिसिंग हो रहा है। शुरू में ठीक था, इट वाज ओके। So there's no sound. सर आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा। आई थिंक वी नीड टू स्टॉप एंड फर्स्ट फिक्स द साउंड।
हेलो, हेलो, हेलो। हाँ सर, अभी ठीक आ रहा है। अभी ठीक आ रहा है, वेट। हाँ सर। हेलो, हेलो। Yes, sir, it's okay now. It's okay. ओके, Please फाइन। carry on. Please carry on. ओके, चलिए। तो हाँ, हम लोग यहाँ पे थे। ये जैसलमेर का फोटोग्राफ है। इसमें ब्यूटी क्या है, आप लोग गौर कीजिए। हाउ इट बिकेम ए ट्रैवल जर्नलिस्ट पिक्चर, एंड विथ ए कैंडिड क्लिक। पहला चीज की कोई भी जो सब्जेक्ट इसमें है वो कैमरे को नहीं देखता। दूसरी चीज, ये जो हैमर से हॉट आयरन पीस को हिट कर रहा है, वो हैमर मोशन में है। और जो स्प्रिंकल आ रहा है वो भी विजिबल है। तो दैट टेल्स वंडरफुल स्टोरी। ये एक जो जैसलमेर का ही गांव का पिक्चर है। आप देखिए कि ये छोटा बच्चा हाथ में छोटा सा लकड़ी को लेके देख रहा है कि उसके जो घर की मदर हो या सिस्टर हो, वो कितने कष्ट से पीने का पानी लेके आ रहा है। दिस इज ए फ्रेम फ्रॉम बीकानेर। इट was captured during the month of May, that peak summer. एंड दिस पिक्चर एक ही फ्रेम में आप समझ सकते हैं कि ये राजस्थान का फ्रेम है, क्योंकि जो पीछे में जो हाउस है वो ब्रिक का नहीं है बल्कि स्टोन का बना हुआ है। प्लस ये गर्मी का मौसम है, लेडी राजस्थान की है। तो दिस इज टू ट्रेवल जर्नलिज्म। This another picture of brick kiln with excellent composition. ये कहाँ का है रुचिरा, डू यू नो? सर ये नॉर्थ कोलकाता का तो है। यस, आ, नॉर्थ का है। और स्टूडेंट्स हम बता दें आपको कि नॉर्थ कलकत्ता पे ट्रैवल जर्नलिज्म को कवर करने के लिए हम वहाँ 10 बार गए। 10 बार जाने के बाद कंप्लीट नॉर्थ कलकत्ता पे एक हमने ट्रेवल वीडियो बनाया था, नेम्ड इसेंस ऑफ नॉर्थ कलकत्ता। तो ये सब का अलग ही आनंद है। दिस इज अगेन फ्रॉम कलकत्ता। ये जो हैंड रिक्शा है अभी मेरे ख्याल से इंडिया में कलकत्ता के अलावा और कहीं नहीं है। दिस इज ए रीडिंग मॉर्निंग न्यूज, अगेन कलकत्ता। कलकत्ता इज ए हब ऑफ स्ट्रीट फोटोग्राफी एंड ट्रेवल जर्नलिज्म एंड फोटो जर्नलिज्म। इट्स ए हब। अगेन कहाँ का है रुद्रा? बड़ा बाजार। अच्छा अच्छा, एमजी रोड, अच्छा अच्छा। दिस इज ए वंडरफुल ट्रेवल जर्नलिज्म का फुल फ्रेम है। ये बीकानेर में एक जाति है जो आग पे चलते हैं, और आग का जो बर्निंग कोल मुंह में लेके ऐसा थ्रो करते हैं। दिस इज वाटर स्टोरी और वाटर स्कार्सिटी। ये हमारे धनबाद के पास का एक ट्राइबल गांव में लिया हुआ है। ये कुछ महीने मेरे ख्याल से मंथ ऑफ मई और मई का लिया हुआ है। अगेन सेम लोकेशन, सेम पिक्चर। दिस इज अगेन स्कार्सिटी ऑफ वाटर। दिस इज आप स्ट्रीट लाइफ कहिए या ट्रैवल जर्नलिज्म कहिए।
ट्रैवल इसलिए कि जो ये हुक्का पी रहा है, ये हुक्का हरियाणा का होता है। हरियाणा के लोग इस तरह के हुक्के का इस्तेमाल करते हैं। और ये पिक्चर भी गुड़गांव का एक स्ट्रीट का लिया हुआ है। दिस इज, आई थिंक ये रॉन्गली प्लेस हो गया। ये ट्रैवल जर्नलिज्म का पिक्चर नहीं है, ये बेसिकली बेसिकली ये फोटो जर्नलिज्म का पिक्चर है। तो ये रॉन्गली यहाँ पे ऐड हो गया, बट इट्स ए गुड फोटो जर्नलिज्म पिक्चर। सी, स्टोरी होना चाहिए प्रेम। ये जो बड़ी सिस्टर है, छोटे बच्चे के ऊपर कितना बढ़िया से एक अपना एक्सप्रेशन दे रही। दिस इज अगेन फ्रॉम अजमेर। 3 old villagers are reading newspaper in the morning. ये तो रुचिरा जानती होगी, कलकत्ता का है। And हाँ ये ब्यूटी इसकी है कि कंपोजिशन और एक हाँ स्टोरी कहना। ये कलकत्ता में एक रिचुअल होता है, इसका नाम क्या है रुचिरा? नाम भूल रहा है। सर, ये दोंडी दोंडी। हाँ, डोंडी डोंडी डोंडी। हाँ हाँ एक कुछ हम दिखा दे रहे हैं आपको ट्रेवल जर्नलिज्म में, कोल माइंस का पिक्चर। ये कोल, धनबाद का कोल माइंस का है। अगेन धनबाद कोल माइंस का है। ये पोल्यूशन पे है धनबाद कोल माइंस का पिक्चर। अब हम चलते हैं कुछ विदेशी, जो हमारा दौरा हुआ है वहां पे हमने कैसे ट्रेवल जर्नलिज्म का फ्रेम किया है। ये आपका मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया का है। ये अगेन मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया का है। सेम मेलबोर्न का है। दिस इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द फ्रेम। एंड देन आइसलैंड, दिस इज आइसलैंड। ये भी आइसलैंड का है। थोड़ा आपको बता दें, ये इसका नाम है रेक प्लेन। ये अमेरिकन प्लेन है जो आइसलैंड में क्रैश हो गया था। और जहाँ पे क्रैश हुआ तो अमेरिका ने ये आइसलैंड को गिफ्ट कर दिया। और आइसलैंड इस रेक प्लेन को एज ए ट्रेवलर्स प्लेस इस्तेमाल करता है। और यहाँ डेली मेरे ख्याल से 1 लाख से कम ट्रैवलर नहीं जाते। और ये जो आइसलैंड का मेन रोड है उससे काफी दूर है, वहां से वॉक करना पड़ता है। जानबूझ के यहाँ तक का जो ट्रेवल बाय कार और बस इज नॉट परमिटेड टू मेंटेन द कैन से नीट एंड क्लीन पार्ट ऑफ द रेक प्लेन। ये साउथ कोरिया का शादी का कैसे वहां पे मैरिज होता है। दिस इज फ्रेम। अगेन जैसे हम हमारे देश में वो डोली का प्रथा है, वैसे ही यहाँ भी डोली में जो दुल्हन को लेके जाते हैं। दिस इज ए ट्रेवल जर्नलिज्म फ्रेम फ्रॉम, इट इज ए हेनली स्ट्रीट स्ट्रैटफोर्ड इन यूके। एंड ये यहाँ पे आगे जाके शेक्सपियर का घर है, तो वहां भी हम गए हैं। दिस इज लंदन स्ट्रीट। दिस इज फ्रॉम पेरिस। आप ईफेल टावर का कुछ पार्ट पीछे में दिख रहा है। आप में से कोई बताए कि इस फ्रेम की ब्यूटी क्या है। वाई दिस इज ए पार्ट ऑफ ट्रेवल जर्नलिज्म। कोई बता पाएगा? देखे गौर से। एनी स्टूडेंट प्लीज, गर्ल्स प्लीज कम आउट। नहीं क्लियर हुआ? इस फ्रेम में आप गौर करो, क्योंकि ईफेल टावर काफी ऊंचा होता है, तो द फोटोग्राफर कैमरे को अपर एंगल से फोटोग्राफ लेने का, लोअर एंगल से फोटोग्राफ लेने का प्रयास कर रहे हैं। बट
to maintain his stability, his wife is supporting him, and his wife is acting like a tripod for him, so that he can capture the frame very sharp. This is frame from Brussels, जो क्रिश्चियनिटी में शादियां होती हैं उसका एक इवेंट है। यहाँ पे गर्ल्स प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो, कुछ कहानी कहने वाले हैं इस फ्रेम के बारे में। यस, एवरीबॉडी इज लिसनिंग टू मी? Yes, sir. या इसको इसकी Yes, बहुत sir. बड़ी कहानी है, आप सबको जानना बहुत जरूरी Yes, है। sir. आप दिल्ली में रहते हैं, फॉरेनर्स दिल्ली में भी काफी आते हैं। आपने गौर किया होगा कि जो फॉरेनर्स हैं वो बेसिकली इंडिया की पॉवर्टी को पब्लिसाइज करते हैं, है ना, जहाँ पे गरीब लोग बैठा हुआ है उस तरह के लोग। मेरा आवाज क्लियर है मैडम? ओके। Yes, sir. It's clear. Yes, yes, it's clear. Yes, sir. हाँ, जो फॉरेनर्स है वहाँ के इंडिया में गरीब लोगों का, भिखमंगों का फोटोग्राफ खींचते हैं और ये प्रचार करते हैं कि इंडिया इज ए पुअर कंट्री। अब बता दें गर्ल्स एंड फ्रेंड्स कि आई एम सन ऑफ ए फ्रीडम फाइटर, तो थोड़ा देश के प्रति एक अलग लगाव रहता है। तो जब हम यूरोप ट्रिप में गए तो एक अंदर में कंसेप्ट लेके चले थे कि हमको विदेश की धरती पे देखना है कि वहां पे बेगर्स है कि नहीं, और उसको बखूबी कैप्चर करना। तो हमने पेरिस में देखा भीख मांगते हुए। फर्क इतना ही है कि वहां की जो महिला है भीख मांग रही है वो बहुत शानदार ड्रेसअप में है, जबकि हमारे यहाँ इंडिया में वो काला कलूटा कपड़ा होता है। इतना ही फर्क है, लेकिन बेगिंग वहां भी है। तो ये हम जहाँ भी कहीं एग्जिबिट करते हैं तो ये फोटो जरूर दिखाते हैं। ये इसकी कहानी है। ठीक है, सेम लोकेशन। हम यहाँ पे कम से कम 20-25 फोटोग्राफ लिया हमने। I think we have come to an end, and now it is your time to ask me anything. Before let me show, there are two books published and available on Amazon and Flipkart, and thank you very much. Now Sir, I would request you to shed some light on your own experiences, आपके अपने अनुभव as a travel journalist. okay. And आजकल because not only still photography, actually vlogging, the videos are the strength of the moment. तो थोड़ा उसके बारे में अगर आप कुछ बताएंगे मैडम। इससे पहले हम थोड़ा स्टूडेंट से जान लें कि उनके मन में कुछ अगर डाउट है तो प्लीज कम आउट। ओके सर, प्लीज। एनीवन? अगर आपके मन में कोई डाउट नहीं, यानी कि आपने ध्यान से देखा नहीं। सर या सर, जब हम कोई भी फोटो क्लिक करते हैं तो हम जब फ्रेम सेट करते हैं तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स इंश्योर करने चाहिए कि हमारी फोटो अच्छी आए? पहले ये कि जो आप कोई भी फ्रेम का फोटोग्राफ लेते हैं तो पहला चीज ध्यान देना है एस्थेटिक्स का। एस्थेटिक्स मीन्स की कंपोजिशन, देन प्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट, कैसे प्लेस करें ताकि मेरा फ्रेम डायनेमिक हो। तो फ्रेम डायनेमिक होने के लिए प्लेसमेंट इज नथिंग बट एस्थेटिक्स एंड कंपोजिशन। ओके, देन कम्स डायरेक्शन ऑफ लाइट। अगर कोई आपका सब्जेक्ट पश्चिम में बैठा हुआ है, मॉर्निंग का समय है, तो लाइट आ रहा है पूरब से, तो जो उसके चेहरे पर लाइट पड़ेगा वो फ्लैट लाइट होता है, तो उसमें आपको 3D इफेक्ट नहीं आएगा। उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा एंगल चेंज करेंगे ताकि एंगुलर लाइट पड़े हमारे सब्जेक्ट पे, तब वो जो फ्रेम होगा उसमें लाइट एंड शेडो आने से वो
3D इफेक्ट है। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? Thank you. सर आई हैव अ क्वेश्चन। या प्लीज। सर जैसे आजकल सोशल मीडिया काफी मतलब राइज हो गया है सोशल मीडिया, तो हाउ डू यू थिंक दैट द राइज ऑफ सोशल मीडिया हैज इन्फ्लुएंस्ड फोटो जर्नलिज्म? यस, वेरी मच। क्या होता है कि अभी जमाना है, प्रिंट मीडिया का जमाना चला गया है ना। कोई भी आजकल किताब नहीं पढ़ता है, नॉवेल नहीं पढ़ता है, ठीक है ना। कोई भी, यहाँ तक कि प्रिंट मैगजीन भी निकलना धीरे धीरे बंद हो रहा है, क्योंकि इट इज बिकमिंग वेरी कॉस्टली। अभी जमाना है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड खासकर सोशल मीडिया का, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या एक्स हो। क्या होता है कि हर कोई मोबाइल सबके हाथ में है, और लैपटॉप और डेस्कटॉप की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है ना। मैंने जो वर्ल्ड है वो, इट हैज कम टू द फ्रेम ऑफ ए मोबाइल। ओके, अब मोबाइल में आप किसी भी टूल से, चाहे मोबाइल हो या कैमरा हो, एक अपना बनाइए कंसेप्ट, मेक ए फोटो ब्लॉग, पब्लिश ऑन द सोशल मीडिया, create a video, even with a still photograph you can make a video, or while clicking your concept for the photo blogging, you also take some small clips or video and then create a combined video and publish it on social media. And then if you start doing it on YouTube, then my God, it is a mind-blowing place. And I am telling you, I too have got a YouTube channel, and within 4 or 5 months, the subscribers have become around 600 subscribers within 4 months or 3.5 months, and watch hour has gone around 1,000 now. So I'm very hopeful that the day will come when it will become it will monetize, and I will get some money. So this is where you can get without any employment, with free living, you can earn money. Okay. Anyone else? Sir, Yeah. sir, I have a question. जैसे for event photography, वो जैसे शादी वगैरह में फोटोज क्लिक होती हैं and they ask them to pose. So is it not ethically correct for photojournalism to include that? No, in any frame, if you are asking to pose, it is not a photojournalism. Be very clear. It should be candid. Even doing event of wedding, you can get some candid frame to be called as photo journalism. Okay. The moment you take to pose, then this is माने, अब ये तो कोई देखता नहीं है बाहर में कि आपने पोज कराया है कि नहीं कराया है, लेकिन आपका दिल तो जानता है ना कि हमने गलत काम किया है। तो अपने दिल को धोखा मत दीजिए। ओके, कहेंगे आप फोटोग्राफ लेंगे, पोजिंग करा के हमको दिखाएंगे, तो हम तो नहीं जानेंगे कि आपने पोजिंग किया है। बट अपने दिल को धोखा न दें और उसको फॉलो करें। गुड, वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स? Sir, I have a question. Sure, Uh, sure, Charo. Yeah. Okay, sir, I can't open my camera as I am not well. Sir, I have a question. So, sir, basically, हमारा जो subject है, that is development journalism. Okay, तो fine. आपके according, what role does photojournalism play कि डेवलपमेंट सेक्टर को वो चीज अच्छे से दिखा सके? मतलब फोटो जर्नलिज्म में डेवलपमेंट के लिए क्या रोल है? ओके, देखो आप, चाहे डेवलपमेंट जर्नलिज्म कहो आप, या फोटो जर्नलिज्म कहो, या ट्रेवल जर्नलिज्म कहो, ऑल आर ऑलमोस्ट सेम। ओके, तो आपका जो डिपार्टमेंट है डेवलपमेंट जर्नलिज्म का, एक्चुअली आई एम नॉट वेरी क्लियर
what this word development means in that. Sudha ma'am, are you here? Can you tell me about the, or anyone from students जो डेवलपमेंट जर्नलिज्म आपके यहाँ बोलते हैं डिपार्टमेंट को, उसमें डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? Is it development of the nation? Can anyone tell? Anyway, no problem. So it is basically a photojournalism, whether it is a development journalism or travel journalism. It is basically a photojournalism. Okay. Are you happy, Charu? Yes, sir. Yeah. So you are studying in Lady Irwin College. Yes, sir. We are So students. you must be knowing the meaning of development in development journalism. Yes, sir. We know. You can tell me. Sir, basically development journalism, as we are learning, it's related to the मतलब growth of the nation, growth of the people. Yeah, fine, Yes, sir. fine. Okay, fine. I think I too got the same concept. So जो जहाँ नेशन ग्रोथ का बात है, तो उसमें जो एक्टिविटीज हो रही है, जैसे अभी बहुत सारे हाईवेज बन रहे हैं, मेट्रो बन रहा है, वहाँ का जो एक्टिविटी है उसको कैप्चर करना will be called development journalism. Am I clear now, Charu? Charu, am I clear? Yes, sir. Yeah. Complete. Yeah. Anybody else? I think my mic was muted. Sorry. See, we are Department of Development, Communication and Extension, where our entire focus is on development issues and the communication and extension related to it. And in the paper of development journalism that we are dealing journalism around development perspectives, which is generally missing in the mainstream journalism. So it's very few news that get covered typically in the DJ category, Yeah. and how you can redirect mainstream news also into a DJ perspective, a development journalist perspective. So whenever you have videos, pictures that are focusing on issues and ideas, and pictures and videos tell a story much more than words, as we all say. So whenever we use whether photojournalism or travel journalism, which is, if it is focusing on issues, then it becomes DJ. Supposing I'm taking Ganga and its picture, and so I'm not only taking tourism, the part of it, but if I'm also focusing on Ganga and its cleaning aspect, all the dirt left by the tourists, all the pollution, or Okay. the life of children around it, then it becomes DJ. Okay. Using my skills in photography and video to focus on development issues. Okay, madam, I got it. The same thing as Yeah. explained. Yes. Like Yes. for, basically journalism is journalism, whether it is a development journalism, photojournalism, or travel journalism. In case Yes. of development journalism, whatever development is occurring in the country, likewise metro, then a lot of roads are being constructed. Okay, so those development, वहाँ पे भी जाके आप जो फोटो जर्नलिज्म का प्रिंसिपल है उसको इस्तेमाल करके ऐसा फ्रेम खींचे जो नेशन के डेवलपमेंट को दिखाए और जो न्यूज में भी कवर हो. एम आई क्लियर मैडम? आपका फिर ऑडियो म्यूट हो गया आपका. योर ऑडियो इज म्यूटेड. सुधा मैम. या सॉरी, जो न्यूज वर्दी इश्यूज हैं, हर इशू को आप एक मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म के नजरिए से भी पेश कर सकते हैं और एक डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से भी पेश कर सकते हैं. तो हर मुद्दे को देखने के अलग अलग एंगल्स, लेंसेज और नजरिए हैं. तो एक मुद्दा डेवलपमेंट का है, और उस मुद्दे से या उस नजरिए से जब हम खबरों को पेश करते हैं तो वो डेवलपमेंट जर्नलिज्म हो जाता है. Yes, clear. Any question from any girls? Okay. जो सुधा मैम ने कहा था कि कुछ हम अपना एक्सपीरियंस, कुछ तो हमने
अपने पिक्चर्स के माध्यम से शेयर किया है। लेकिन हम बता दें आपको कि हमको इस तरह का फोटो स्टोरी करने का बहुत मजा आता है। हमने कई फोटो स्टोरी भी किया है, जो आज तो संभव नहीं है दिखाना। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग था मेरे पास इसेंस ऑफ नॉर्थ कलकत्ता के ऊपर काम करने का। एंड ईच इमेज फ्रॉम नॉर्थ कलकत्ता इज ए पीस ऑफ फोटो जर्नलिज्म। सिमिलरली हमने एक फोटो स्टोरी किया था स्कार्सिटी ऑफ वाटर पे। तो जो भी आपको कुछ भी करने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए खास के बताएंगे कि आपको पहले एक कंसेप्ट को सोचना है, इमेजिन करना है। इमेजिन करके आपको उसको राइट डाउन करना है कि आप उसमें क्या क्या चाहते हैं। यू हैव टू पेन डाउन योर कंसेप्ट एंड देन यू स्टार्ट कैप्चरिंग इट, देन यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। Am I clear? और कोई? सर जैसे आपकी वो स्टोरी थी कैलकाटा की जिसमें द ह्यूमंस आर इवन टिल टुडे पुलिंग द रिक्शा, तो वो टिपिकली एक कहानी डीजे के पर्सपेक्टिव से पेश की जा सकती है कि द ह्यूमन इनपुट वर्सेस द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन कैलकाटा, and you know what are we talking about human rights and development and the quality of life of those people who are still pulling the rickshaws like that manually. वो क्या ना मैडम की तो हर मुद्दे को टच करने का एक अलग नजरिया हो जाता। तो वो करने के लिए पहले स्टूडेंट्स को एक कंसेप्ट फॉर्म करना चाहिए, उसको पेन डाउन करे एंड देन स्टार्ट कैप्चरिंग। आई थिंक वी शुड क्लोज नाउ, सुधा मैडम। if you just could spend 5 more minutes on आपके अपने अनुभव, any अनुभव इंडिया या बाहर, ताकि स्टूडेंट्स could benefit about 5 minutes। जो हमने ट्रैवल जर्नलिज्म दिखाया ना मैडम, जी कुछ और अगर आप अपने शब्दों में कहना चाहें, we've seen your pictures, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। वही बता रहे हैं कि क्या है कि ये हम जो हर जो जोनर में काम करते हैं, जैसा कि आपने देखा, आप लोगों ने देखा इंट्रो वीडियो में, लेकिन जो सबसे चैलेंजिंग है वो है फोटो जर्नलिज्म, मोस्ट चैलेंजिंग, बिकॉज सिंपली क्लिकिंग ए फ्रेम डजंट मेक ए फोटो जर्नलिज्म फ्रेम। सो यू हैव टू थिंक, यू हैव टू वहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ता है लोगों की एक्टिविटी, लोगों का जो चेहरे का भाव है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो वो सब देख के तब आदमी फ्रेम कैप्चर करता है। साथ में जो मेरा एक्सपीरियंस है, पहले हम एक सिंपल कैमरा और लेंस लेके चलते थे, तो उसमें हमने देखा कि ये जो मेरा पर्सपेक्टिव है या जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उतना डायनेमिक नहीं हो रहा। तो फिर हमने फिश आई लेंस का इस्तेमाल शुरू किया। और फिश आई लेंस क्या है कि फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू को डिफॉर्म करता है, बट उसका टेक्निक है वो जानना जरूरी है कि हम फिश आई लेंस को कैसे इस्तेमाल करें ताकि डिफॉर्मेशन कम से कम। अब बता रहे हैं कई बार क्या होता है कि किसी इवेंट को, कोई भी एक्टिविटी हो रही है स्ट्रीट में या कहीं भी, तो भीड़ पूरी जमा हो जाती है। तो जो मेन एक्टिविटी हो रही है, मान लिया कोई किसी को मार रहा है, कुछ कर रहा है, तो वहां पे इतनी भीड़ होगी कि आप उस भीड़ के साथ फोटो ही लेना पड़ेगा, जो मेन सब्जेक्ट नहीं दिखेगा। तब वहां पे ये जो वाइड एंगल लेंसेज है वो काम करते हैं कि आप भीड़ से आगे जाके एकदम सब्जेक्ट के 3 फीट या 2 फीट करीब में भी जाके आप फोटो ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। तो इसीलिए हमारे पास लेंसेज का सीरीज बहुत है, और जैसा हमको काम करना है उस तरह का हम लेंस इस्तेमाल करते हैं। ओके मैडम? Yeah, sir. So, girls, any query? Or should we wind up? No, ma'am. I would just like to do the vote of thanks for today's session. Before you do that, sir, beta, एक second. I would like to thank Dr. Sunil Kumar, who has also joined us. He's our new faculty, and he's also taking the video production practicals with this batch of students. Yeah, so he's also with us.
And I would also like to thank all the external guests, the people from the field of journalism who are also participating. Yes, Mehak, now. Mansi, sorry. Please go on. Yes. Good evening, one and all present here. I am Mansi Ulsai, and I am currently pursuing Masters in Development Communication and Extension. And I am very grateful to extend a vote of thanks for Mukesh Srivastava sir, like how enriching and insightful for this insightful session on photojournalism and travel journalism. So your expertise and engaging presentation have not only like deepened our understanding, but it has like also inspired us and like to view this concept of photojournalism and travel journalism from a new perspective. We are truly grateful for your time, sir, and we like the effort you have made in session are like truly appreciated. So thank you, sir, once again for this session, and we are truly grateful for your session, for attending your session today. Thank you, sir. Thank you, everyone, for joining in. Thanks everyone. Okay, ma'am. So let us say goodbye. Yeah. Let us say first, thank you. Thank you for being such a sport कि इतने short notice पे आप agree कर गए और आपने volunteer किया. I am sure students have enjoyed and at least इसमें से आधे लोग ऐसे होंगे जो थोड़ा सा इनका नजरिया फोटो जर्नलिज्म और ट्रैवल जर्नलिज्म के लिए बदलेगा and they would want to take it up as an exercise. More interested in future, and they will bother you more in future as a resource person. कि sir, please help us. जहाँ In पे whichever way स्टूडेंट you को can. कोई भी गाइडेंस चाहिए, feel free to catch me in Facebook Messenger or Instagram, anywhere. I'm very available in the social media, and I can tell you, students, I'm very active on social media. I'm very active, and I have got a lot of benefits from social media. Likewise, अमेरिका में मेरे 2 फोटोग्राफ को सिलेक्ट किया गया फ्रॉम द फेसबुक पेज, और आई एम गेटिंग $200 every year out of those 2 photographs. तो इस तरह से है. Okay, good night. Okay, sir. Thank you, everybody, and thank you, sir. Okay. We hope to have more time with you in future. Thank you. Sure, thank you. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir.